Welcome children. In this video you will be learning about few general purpose built-in functions related to dictionary. Remember that these are built-in functions, so you do not need to import any module for using them. You can straight away call their name and pass the required argument to get their work done. Okay, so let us now see what is len function first. Len is a very common function which you have already studied in list, tuple and string also. So here in the same way it returns the length of the dictionary, means how many key value pairs are present in the dictionary. So you just have to count how many key value pairs are present in the dictionary, and that will be the length of this dictionary. So here you can see with the help of syntax how to use it. You don't have to use any object name for using this function. You straight away write len and you pass the name of the dictionary whose length has to be calculated. Okay, and it returns you the length of that dictionary, means the number of key value pairs present in that dictionary. So you can see an example also over here कि यहाँ पे एक डिक्शनरी है EMP नेम से, और हमको अगर इसकी लेंथ निकालनी है देन वी हैव टू स्ट्रेट अवे पास दिस EMP dictionary inside the len function and we will get the number of key value pairs present in this dictionary. So you can see here कि यहाँ पे 4 की वैल्यू पेयर्स हैं, ENO, ENAME, age and city. Okay, so this is how the len function works. It simply returns you how many key value pairs are present in this dictionary. Next is min function. As the name suggests, this function is used to return the minimum key or value present in the डिक्शनरी. देखिए इस फंक्शन से हम मिनिमम की भी फाइंड कर सकते हैं और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जो मिन फंक्शन है इसको आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं. पहला होता है कि डिक्शनरी का नेम. अगर आपने डिक्शनरी का नेम पास किया है तो ये आपको मिनिमम की रिटर्न करेगी. Key will be returned. Remember that whenever you mention the name of the dictionary in a function, it always works upon the keys of that dictionary. तो ये आपको minimum key देगा. In the same way अगर आपने dict name dot keys function भी कॉल कर दिया है तो इसके भी आपको minimum key ही मिलेगी. ठीक है, so if you write dict name or the dictionary name dot keys, you know that keys function lets you access the keys of the dictionary only. So it returns a sequence in which there are keys of the dictionary. तो उसमें से जो सबसे छोटी की होगी वो आपको यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी. उसके बाद dict name dot values, अगर आपने ये लिख रखा है तो you know that this values function returns you a sequence containing only the values of the dictionary. तो उन वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपको ये फंक्शन रिटर्न करेगा. बट द मेन पॉइंट हेयर इज़ दैट कीज़ और वैल्यूज़ मस्ट बी कंपेरेबल. जब भी आप कीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो कम से कम कंपेरेबल तो हो, तब तो आप उसमें से मिनिमम या मैक्सिमम निकाल पाएंगे. ठीक है, तो अगर एक की इंटीजर है तो बाकी भी इंटीजर या फ्लोट हो ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें. अगर एक स्ट्रिंग है तो बाकी भी स्ट्रिंग्स ही हो ताकि आप उनको कंपेयर कर सकें. तो ये यहाँ पे कंडीशन होती है कि कीज़ और वैल्यूज़, आपकी कीज़ जो होती हैं या फिर वैल्यूज़ जो होती हैं वो कंपेरेबल होनी चाहिए, तभी ये मिन फंक्शन वर्क करेगा. अदरवाइज़ आपको एरर इसमें मिलेगी. ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल बाद में देखेंगे. पहले मैक्स फंक्शन भी देख लें क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप का वर्क करते हैं. बस डिफरेंस ये होता है कि मिन फंक्शन विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू वेयर एज मैक्स फंक्शन विल गिव यू द मैक्सिमम की और वैल्यू. ठीक है, ये आपको मैक्सिमम की या वैल्यू देता है, यानी की और वैल्यू हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू. तो इसमें देखिए ये या फिर ये अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम की मिलेगी, लेकिन अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. ठीक है, अब इसमें भी वही कंडीशन है कि कीज़ और वैल्यूज़ मस्ट बी कंपेरेबल. इसको आप एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे देखिए एक डिक्शनरी ले रखी है मैंने. ठीक है, अब इस डिक्शनरी में मेरी जो कीज़ हैं वो सारी स्ट्रिंग्स हैं, कंपेरेबल रखना पड़ता है, और जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी सारी इंटीजर हैं. हम इंटीजर के साथ फ्लोट भी ले सकते थे. अगर मैंने मिन डी लिखा, देखिए मैंने सिर्फ डिक्शनरी का नाम लिखा तो मुझे मिनिमम की मिल रही है. तो अगर आपने
डिक्शनरी का नाम लिखा हुआ है तो ये आपको मिनिमम की देता है। अब देखिए इसके बाद मैंने लिखा मिन डी डॉट वैल्यूज़, तो यानी कि वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 10, तो आपको देखिए 10 आंसर आ गया। फिर डी डॉट कीज़, मिन डी डॉट कीज़ में भी आपको देखिए ए आ रहा है, क्यों? क्योंकि डी डॉट कीज़ का मतलब हुआ अ सीक्वेंस कंटेनिंग ओनली द कीज़ ऑफ द डिक्शनरी, और उस सीक्वेंस में जो सबसे छोटी की होगी आपकी वो आपको रिटर्न होगी। तो ये हमारा सीक्वेंस रिटर्न होना चाहिए कीज़ फंक्शन से, इसमें सबसे छोटी की क्या है? ए, तो ये आपको रिटर्न हो गई। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके का काम हमारा मैक्स का होता है। देखिए मैंने मैक्स फंक्शन में डी दिया तो इसने मुझे मैक्सिमम की रिटर्न की, फिर डी डॉट वैल्यूज़ दिया तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न की यानी 60। ठीक है, फिर मैक्स डी डॉट कीज़ किया तो भी देखिए मुझे डी आ रहा है क्योंकि डी मेरी मैक्सिमम की है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ योर मिन मैक्स functions work with dictionary. Make sure that in both of these functions your keys or values are comparable. Next is the sum function. अब सम फंक्शन का जैसे कि नेम सजेस्ट करता है ये आपकी कीज़ या फिर वैल्यूज़ का सम रिटर्न करेगा। तो एट अ टाइम या तो आप सिर्फ कीज़ पे काम करेंगे या फिर सिर्फ वैल्यूज़ पे काम करेंगे। तो आप इसको जो भी देते हैं ये उनकी कीज़ या फिर वैल्यूज़ को ऐड कर देता है। रिमेंबर वन थिंग दैट कीज़ और वैल्यूज़ मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग एडेड, मतलब ये जो कीज़ हैं या फिर वैल्यूज़ हैं ये हमारी न्यूमरिक होगी तभी ये ऐड होगा। रिमेंबर यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल एडिशन होता है। तो आपकी कीज़ को या तो इंटीजर होना चाहिए या फिर फ्लोट होना चाहिए, उस केस में आपके ये जो फंक्शंस हैं ये आपको सही रिजल्ट देंगे। अब देखिए 3 तरीके से आप इस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। पहला है सम डिक्ट नेम, जब आप ये लिखोगे तो सारी जो कीज़ हैं उनका सम आ जाएगा। ये जब आप लिखोगे तो इसमें भी आपको कीज़ का सम आएगा और इसमें आपको वैल्यूज़ का सम आएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, ये मेरी डिक्शनरी है तो मैंने जब डी डॉट वैल्यूज़ का सम किया तो देखिए 20, 40, 60 और 10, इसको आप जोड़ेंगे तो 130 आएगा, रिटर्न हो गया। लेकिन जब मैंने कीज़ पे, ये देखिए मैंने गलत टाइप की कीज़ ले रखी, स्ट्रिंग में मैथमेटिकल एडिशन नहीं हो सकता, इसलिए उसने मुझे टाइप एरर दे दी सेइंग दैट अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स, मतलब ये जो आपने कीज़ हैं इसकी वो ऐड करने के लिए नहीं है, मतलब ऐड नहीं हो सकती, कॉन्कैटिनेट हो सकती थी लेकिन सम फंक्शन कॉन्कैटिनेशन नहीं करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐड करता है। तो आपकी अगर आप कीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो कीज़ भी इंटीजर या फ्लोट हो, ठीक है, या फिर वैल्यूज़ भी इंटीजर या फ्लोट हो। ठीक है, तो ये इसमें कंडीशन होती है, अदरवाइज सम फंक्शन विल रेज एरर। सम मोर एग्जांपल्स यू कैन सी। अब यहाँ पे देखिए मेरी ये डिक्शनरी है, इसमें मैंने जो है कीज़ को मैंने लिखा सम एक्स, यानी कि कीज़ पे वर्क होगा तो 30, 40, 10.6 एंड 2.4 ये ऐड होके आपको 83.0 मिला। फिर एक्स डॉट कीज़ में भी हमें वही आंसर मिला क्योंकि इसमें भी कीज़ पे ही काम होगा। एक्स डॉट वैल्यूज़, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हमारी, ये वैल्यूज़ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स कंपेयर किया जा सकता है फॉर लेस देन और ग्रेटर देन। तो इसमें देखिए मेरी सबसे छोटी स्ट्रिंग कौन सी हो जाएगी? अनुज, और सबसे बड़ी स्ट्रिंग हो जाएगी विनय, क्योंकि वी एन लास्ट में आता है ना। तो देखिए मैक्स एक्स डॉट वैल्यूज़ ने विनय दिया, मिन एक्स डॉट वैल्यूज़ ने अनुज दिया। लेकिन सम अगर हम करें एक्स डॉट वैल्यूज़ पे तो आपको एरर आ जाएगी क्योंकि स्ट्रिंग्स को सम नहीं किया जा सकता, ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इन केस ऑफ मैक्स एंड मिन फंक्शन योर वैल्यूज़ शुड बी values or keys should be comparable, and in case of sum function you can say that keys or values should be numeric, otherwise you will get error. Okay, so I hope these functions must be clear to you. If you have any confusion you can write it in the comment section. Thank you so much.